चलो हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। एंड सबसे पहले तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स टू अरुण, सचिन, दिव्यांग, आशुतोष एंड श्रवण ऑन गेटिंग सेलेक्टेड इन CHSL 2022। और सबसे अच्छी बात है, सारे मेरे रैंकर्स हो, सारे 100 के अंदर वाले रैंकर्स हो। एक बार अरुण बता दीजिए आपका, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्या रैंक है आपका? मेरा मैम 92 रैंक है। ओके। और कहाँ से हो अरुण आप? मैम मैं गुरुग्राम हरियाणा से हूँ। गुरुग्राम हरियाणा से। चलो एक बार पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। और सचिन, आप आपका रैंक क्या है? Ma'am, my rank is 45. योर रैंक इज 45 एंड वेर डू यू बिलोंग टू? कहाँ से? Ma'am, Alwar. अलवर से। ओके। एंड नाउ कमिंग टू आशुतोष। आशुतोष का मैसेज भी आया था, आशुतोष का रैंक सेकंड है ना? यस मैम। और कहाँ से हो आशुतोष आप? हम कोटा राजस्थान। कोटा। अच्छा, अलवर राजस्थान और कोटा। तो आपने सोचा था कि आपका रैंक सेकंड आ जाएगा? नो मैम, नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं था। कोई आइडिया नहीं था, अचानक से देखा है सेकंड रैंक तो आया होगा ना, अरे ये कैसे हो गया? क्या फीलिंग आई थी जब सेकंड रैंक देखा तो? बहुत ज्यादा अच्छा लगा मैम। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चलो सबसे अच्छे से बात करेंगे। एंड नाउ कम टू श्रवण। श्रवण, आपका रैंक क्या है? मैम, मेरा रैंक 25। मैडम एक्सक्यूज मी, आई डोंट नो हिंदी मच। आई कैन स्पीक इन नो इंग्लिश। नो नो, वी विल कन्वर्स इन इंग्लिश। ओके। ओके। योर रैंक वाज 25 एंड वेयर डू यू बिलोंग टू? आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश मैम। आंध्र प्रदेश। तो where did you did the preparations? You did from my YouTube channel or from an academy? आई टुक फ्रॉम यूट्यूब चैनल मैम। अच्छा, you did the preparation. Yours mainly, yours video that is 60 important rules of grammar. Okay. That's really helpful for me. Okay, so in on my YouTube channel, primarily I used to teach Yes. in Hindi only. Then you must be having some problems related to whenever I used to speak in Hindi and all, na, so you must be facing problems and Uh, all. but that's not a problem. I mean, I can understand a little bit Hindi because I stay in Hyderabad. Here, all speak Hindi also. So that's not a problem. But communicating in Hindi means it's a bit difficult for me. It was a bit difficult for you. Okay, no, now no doubt all the slides and all they were in English, na. So I think you, Yes. हाँ. So yeah, just share me your journey, your preparation journey, Um, how you started this preparation, how did you come to know about SSC and all? Actually, I started my preparation in 2019 itself. Okay. Uh, but every exam uh, I completed my DV also, but every time I was rejected in the DV. I mean, I was not selected in the merit. Okay. But in 2021, luck favor me. That's why That was the now app. I'm working as a PA man, Acha. Okay. So you are sorting preparing. assistant in Hyderabad. Okay. And you are preparing for CGL as well? Yes, ma'am. But in CGL 22 also I got same as sorting or PA essay only. That's Oh, why I'm preparing for 23. 23 go you'll be preparing for. Chalo. So share me some interesting moments during your preparation journey. Anything you have to share with Uh, me or with the other students. What will you like to guide them? Ma'am, I can. I mean, I just tried my. I mean, I just tried to CHSL 2022 just for the. Uh, and what I can say, just preparation for 2023 exam. I mean, like mock test, I gave that one without any fear. I went to that exam. That's why I got this marks. I mean, if we have fear, we won't get that marks and that good rank. And Yes. compared to, Matlab, at any cost, whether you appear for any exams, first of all, you have to be strong enough. Okay, strong enough. strong enough in the sense of physically also, mentally also. Now, no doubt, mentally matters. Yeah. If we have fear, we won't do that much good in exam. You won't be able to give your 100% na, in that Yes. short time. Okay. Well, I'll come to you again. Now let's come to Okay. दिव्यांग। दिव्यांग, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। मैम मेरी रैंक 50 है एंड ओके। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा। तो कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की थी, और पहले तो बताओ कैसी फीलिंग आई? रैंक बहुत अच्छा है आपका, 50 रैंक है। एक्सपेक्ट किया? मैम एक्सपेक्टेड नहीं था।
एक्सपेक्टेड नहीं था। तो शॉकिंग था काफी जब फ्रेंड ने मैसेज किया तो पता चला कि। एंड मैम प्रिपरेशन मैंने सीजीएल 2022 के लिए स्टार्ट की थी जब नोटिफिकेशन आया था सितंबर 2022 में। ओके। तो यस मैम। और अपना प्रिपरेशन कैसे कैसे स्टार्ट किया था, कौन कौन सा, मतलब आपके आपका सबसे मैम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? मैम मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ्स था क्योंकि मैं मैथ्स पार्ट टाइम टीच करता था, तो वो एक स्ट्रेंथ थी। बट जैसे मैम एसएससी में ट्रिक्स कभी कभी यूज करनी पड़ती हैं क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए, तो वो एडवांटेज मेरे पास नहीं थी कि मैं बच्चों को पूरा एक्सप्लेन करता था बट वहाँ पे ट्रिक्स लगानी पड़ती थी, तो वो मुझे भी सीखनी पड़ी सब। और इंग्लिश में मैम मुझे ग्रामर से, मतलब स्पोकन इंग्लिश अच्छी है बट ग्रामर से बहुत डर लगता था कि बहुत सारी ऐसी चीज आपके साथ सीखी मैम यूट्यूब में मैंने, कि मतलब वो चीजें हम नॉर्मल यूज करते हैं कॉन्वर्सेशन में, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम आपसे सीखा, हम लोग बोल देते हैं इट इज मी हु हैज डन दिस एंड ही इज टॉलर देन मी। तो ये सब चीजें हम लोग बोलते हैं बट ये गलत होती है ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो मैम आपके ग्रामर के जितने भी वीडियोस थे यूट्यूब में उससे मैंने सीखा, तो मैम मेरा वो डर वहीं से गया ग्रामर का, इंग्लिश का। और वोकैब वगैरह? अच्छा, आप मेरे सोनली यूट्यूब मैम वो स्टूडेंट हो? यस मैम, मैम वो कैप का मैंने ये किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही रिलाई किया। आपने जो मैराथन A to Z वो कैप उसके मैंने नोट्स बनाए खुद से, और डेली मतलब सुबह उठते वो कैप पे सर ऐसे इतना था चलो कर लेते हैं, मतलब क्योंकि फिर लगता था फिर बाद में कुछ और कर लेंगे। तो मैम डर था, जिस चीज का डर था उसको पहले ही फेस कर लेते थे मॉर्निंग में ही, ताकि फिर रिलैक्स होके बाकी सब्जेक्ट्स देख सकें। ओके। और जीएस तो वगैरह कैसे किया था? मैम जीएस का ऐसा था कि स्टार्टिंग में सीजल का लेवल भी इतना नहीं था, अब तो लेवल भी हाई हो गया है, बट अब ऐसा था कि मैम पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने देखे सारे, उनके ऑप्शंस के नोट्स बनाए। और मैम लूसेंट लूसेंट मैंने नहीं ली थी, ऐसे नीच ली कि मुझे मैम कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरी रैंक आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं थोड़ा सा लाइट वे में जीएस को कर रहा था क्योंकि पहले प्री को क्लियर करना था। फिर मैम मैंने धीरे धीरे लूसेंट पिक की सीएचएसएल मीन्स के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाया, तो मैम उससे काफी हेल्प मिली इस बार। प्रीवियस ईयर, नो डाउट प्रीवियस। अभी तो थोड़ा, लेकिन बच्चों का कहना है कि मैम जीएस का लेवल जैसे करंट भी करंट नहीं है, अब तो करंट 3 साल पुराना वाला भी करंट हो गया। बिल्कुल मैम। तो तो क्या अभी जो हमारे बच्चे अभी तो सीएचएसएल का प्री दे रहे हैं, तो मेंस में जो यस हमारे मैम। बच्चे जाएंगे उनको क्या गाइड करोगे? मैम करंट का, अगर करंट को लेके बच्चे परेशान है तो वो उनकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इनपुट आउटपुट रेशियो उसमें सही नहीं जा रहा है। जैसे मैम सीएचएसएल मेंस में उन्होंने मार्च और मई का पूछा 2023 के क्वेश्चंस, और अगर आप सीजीएल मेंस में जाओ तो 2021 के भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए। मतलब ये 2 साल पीछे भी जा सकते हैं और जस्ट इस महीने का भी, इस मंथ का भी पूछ सकते हैं। तो कुछ श्योरिटी नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप इसको कितना टाइम, अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स हो गए, लेट्स से आप सीरियस अब करके बैठे हो तो आप कर लो, वरना आप इसको धीरे धीरे करो और इतना सीरियसली मत लो, मतलब करो बट इतना भी टाइम मत दो इसको, क्योंकि आउटपुट अच्छा नहीं है मैम करंट का। और स्टार्टिंग के लिए आप लूसेंट को फॉलो करो, क्योंकि मैम प्रॉब्लम क्या है, बुक्स इतनी आती जा रही है मार्केट में जीके की कि मतलब इसको भी कर ले उसको भी कर ले, कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम जा रहा है इंस्टेड ऑफ उसको कंटेंट रिवाइज ज्यादा हो करने में जाता कम। है उसमें। यस मैम, कंटेंट बहुत हो गया है इस तो टाइम। बच्चों को आप यही बोलना चाह रहे हैं कि अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए। यस। और लिमिटेड। उसको बाद में रिविजन करो, एक बार कर लो तो फिर आप दूसरे सोर्स में मूव कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार उसको करो तो अच्छे से 3-4 बार। अगर अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो सीएचएसएल का लेवल भी यस बहुत मैम। अच्छा आ रहा है। जैसे जब आप मेंस देने यस मैम। गए थे, तो आपने पीक्यूआरएस अरेंजमेंट को, पैसेज को कैसे टैकल Yeah. किया सब? मैम पीक्यूआरएस का जैसे आपने आपके सेशंस थे ट्रिक्स के कि उसको कैसे समझना है पेयरिंग करके, और जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है, आप उनको बेसिक्स को एक नोटबुक में नोट करो, और उसको जब आप पैराजम्बल करने बैठो ना, आप उसको साथ साथ में रख के देखो, नोटबुक ओपन करके रखो जो भी ट्रिक्स है, और आप देखते रहो कि क्या कुछ मेरा कनेक्शन इससे फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। और मैम बाकी ये होता है कि अगर आपको ओवरऑल कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपको पूरा थीम समझना पड़ेगा पैसेज से, कि पैसेज में चल क्या रहा है। कभी कभी ये भी आपकी हेल्प कर सकता है, अगर आप रीडिंग आपकी हैबिट है, इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर एक एक एडिटोरियल आप डेली रीड कर सकते हो, बट अगर नहीं भी कर सकते हो लेट से, तो आप एटलीस्ट मैम देखिए पैराजम्बल 5 to 6 अगर मेंस में आएंगे सीजल वाले में, तो 2 to 3 तो वो ऐसे देगा कि ज्यादातर लोग कर पाएंगे उसे, मॉडरेट या इजी लेवल के सही होंगे। बोला, सारा टफ नहीं रहता है। अगर 6 पूछ यस रहा मैम। है तो मैं तो मान के चलती हूँ 3 से 4 आप कर लोगे। यस मैम। 3 से 4 आप कर लो। और जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छी बात है, बट उनको एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन जो ऐसा नहीं भी यस पढ़ रहा है ना, वो भी पैसेज की प्रैक्टिस पैसेज से करेंगे, तो मतलब सारा हो खेल जाएगा। प्रैक्टिस का है। यस। इस बार सीजीएल देना है, यस मैम। कैसी चल रही है तैयारी? मैम तैयारी में लगे हुए हैं कि मतलब टाइम नहीं
वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैम टाइम, हम लोग ये सोचते हैं ना टाइम पता नहीं कब होगा, मीन्स क्या होगा, कट ऑफ क्लियर होगा नहीं होगा, इसमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। मैंने पिछले बार ये मिस्टेक की थी कि दिसंबर मैंने पढ़ाई नहीं की। तो मैम ये सीखने को मिला है कि एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, पूरा उसमें आप पूरा आउटपुट लगा दो, जब एग्जाम होना होगा तब हो जाएगा। हाँ, ये सब तो जो चीज आपके हाथ में नहीं है ना उसके बारे में अननेसेसरी, क्योंकि एक बार आप पढ़ने बैठोगे ना तो लगेगा कि टाइम कम है। क्योंकि अभी भी यस। प्री का जब आंसर की आया है ना, आधा से अधिक बच्चे ना डायलेमा में है कि मैं मेंस का कोर्स करूं या ना करूं। अरे मेंस का कर भी लोगे तो कोई वेस्ट तो नहीं जाएगा ना। अगर प्री, गॉड फॉरबिड, अगर प्री नहीं भी होता है तो फिर से तो तैयारी करनी पड़ेगी, तो मेंस उसी में हो जाए। बिल्कुल तो चलो दिव्यांग, बहुत अच्छा लगा। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है? मैम, वो तो शॉक थे काफी, फिर थोड़ा टाइम लगता है सिंक इन होने में फीलिंग्स को, तो फिर उनको काफी अच्छा लगा ये जानकर। बोला होगा चलो अब CHSL निकाल के दिखाया है, दम है तो CGL यस, निकाल के दिखाओ। यस बिल्कुल, आई ट्राई माय बेस्ट। ओके चलो, बहुत अच्छा लगा। नाउ कमिंग टू आशुतोष। यस मैम, वेरी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आशुतोष, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो चलो बहुत अच्छा लगा, मतलब सेकंड रैंक सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मेरे चैंपियंस ही है, ठीक है। वो तो सेकंड रैंक किसी को पता नहीं होता है ना, रैंक क्या है। आप लोग सब तैयारी करके जाते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, वो तो अचानक से आपको रैंक दिख जाता है। तो आशुतोष बताइए कैसे कैसे आपने तैयारी किया? मैम 21 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, ये तो बीटेक करा था मैंने। ओके। उसके बाद मेरा एक आईटी कंपनी में प्लेसमेंट भी हो गया था, पर लेकिन मुझे वो वर्क सूटेबल नहीं लगा। तो मैं ये तो क्लियर था कि ये काम तो मैं नहीं कर सकता। फिर वो मैंने जॉब छोड़ा, और 2-3 महीने में मैंने इसी उसमें था कि ये तो कौन सा एग्जाम करूं, कौन सा एग्जाम करूं। एसएससी का बहुत नाम सुन रखा था, और तो एसएससी का गई तो मैंने, ये था मेरा कि ऑफलाइन कोचिंग करने से बढ़िया है ऑनलाइन कोचिंग, घर पे रह के आराम से कर सकते हैं। एक वो पेरेंट्स का भी एक वो रहता है। तो फिर मैंने अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन ले लिया था। ओके। फिर मैंने, पर मेरे पास गाइडेंस नहीं था कि कौन से टीचर से पढूं, क्या कैसे तैयारी करे। कोई दूर दूर तक कोई वो नहीं था ये था। फिर शुरू में तो जो टीचर के उसमें देखे मैंने, मतलब एक ऐसा बताता हूँ मैं, जैसे इंग्लिश का था, एक इंग्लिश की मैम थी, काफी बढ़िया वो था उनका रिस्पॉन्स। पर लेकिन मुझे उन्होंने 1 महीने के अंदर क्या कहते हैं पूरा इंग्लिश पैक कर दिया था, ऐसा था। फिर इंग्लिश हो गया, पूरा सिलेबस हो गया, ऐसे ही क्या कहते हैं मैथ्स का हो गया था। फटाफट फटाफट सिलेबस हो गया था, 2 महीने के अंदर पूरा एसएससी का सिलेबस कंप्लीट हो गया था एक तरीके से। मुझे लगा ये तो बहुत ईजी है। फिर जब मॉक वगैरह दिए, तब उसमें 100 नंबर या उससे नीचे ही रह रहे थे, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे करके फिर एक किसी स्टूडेंट ने आपके बारे में बताया, तब इंग्लिश का तो पे उसके बाद कभी ऐसा जरूरत नहीं पड़ी। कभी कोई प्रैक्टिस बुक, कभी कोई कोई बुक मैंने कभी नहीं उठाई गई थे इंग्लिश की, और प्रैक्टिस भी आपसे ही करी। और एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया था इंग्लिश का, आपका फाउंडेशन कोर्स शायद जब चलता था, वो वाला करा था। उसके बाद वोकेब वाला करा, समुद्र मंथन से करा। तो इंग्लिश तो उसके बाद सॉर्टेड थी, क्या कहते हैं कि इसके लिए कहीं क्या कहते हैं देखने की जरूरत नहीं है। एक ब्लाइंड ट्रस्ट क्या कहते हैं आप पे था। जब आशुतोष, जैसे बच्चों को अगर आप क्या, मैं तो अक्सर एक ही चीज बोलते ही रहती हूँ, लेकिन अगर आपके थ्रू बच्चे आप बोलोगे ना तो वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो, वो भी स्टूडेंट है, और आप सेलेक्टेड स्टूडेंट हो, आपकी बात ज्यादा मानी जाएगी। और आप सेकंड रैंक करो और भी ज्यादा मानी जाएगी आपकी बात। अगर कोई बच्चा तैयारी करने आता है तो उसको आप क्या गाइड करोगे? सबसे पहले तो उसको ग्रामर का कोर्स करना है, कितनी बार करना है कोर्स को? एक बार ही करना है कोर्स, कोर्स को एक ही बस। बार करना एक कोर्स एक बार करना है, और क्या कहते हैं, और एक ही टीचर से करना है। ऐसा नहीं है क्या कहते हैं कि इस टीचर से ही एक बार कोर्स कर लिया, आप दूसरी टीचर से, कंटेंट सेम ही है सारा पूरा। है। सब ब- टीचर सेम ये पढ़ाते हैं। प्रैक्टिस के लिए जरूर आप डिफरेंट सोर्सेज के ट्राई कर सकते हो, पर लेकिन कंटेंट तो वो एक ही है। और आपसे आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हुए कहते हैं, तो उधर कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है, कहते हैं कोई दूसरे पर उस पर। बच्चे ना पढ़ तो सब जगह से लेते हैं, बट कहीं ना दे लैक इन प्रैक्टिस। उनको प्रैक्टिस करने का मन ही नहीं होता है, सिर्फ कॉपी।
वो टीचर ने 20 रूल पढ़ाया, दो वो टीचर ने दो ज्यादा पढ़ा दिया, उसको भी नोट कर लेना है। उनको रूल्स वगैरह सब पता है, लेकिन वही जब क्वेश्चंस आता है तो उनको अप्रोच सही नहीं है, वो नहीं कर पाते हैं। और वो कैब वगैरह कैसे करते थे आशुतोष, भूल जाते होगे जब वो कैब याद करते होगे? यस मैम। मैम वो निमोनिक से करते थे, क्या कहते हैं, पहले तो डायरेक्ट क्या कहते हैं, डायरेक्ट पढ़ने का ट्राई करते थे, पर वो 3 4 वर्ड अगर एक्स्ट्रा होते ही थे भूल जाते थे, फिर पीछे आ गए थे पूरा, वो हो जाता था, कंफ्यूज हो जाते थे, तो इसका ये था, इसका ये था। फिर निमोनिक से, जैसे आपने समुद्र मंथन वाले कोर्स में बताया था, तो उससे बहुत हेल्प हुई। वो क्या अब रिविजन करने का है। अगर मैं बात हाँ, करूँ, और हाँ, बार बार रिवीजन किया। बार बार रिवीजन है। और भूलना ना, वो वी आर ह्यूमन बींग्स, हम तो भूलते ही है। ऐसा थोड़ी है एक बार में सब याद हो जाएगा। रिवीजन करना है, बार 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 रिवीजन करना है। और चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्लोज टेस्ट। और अभी तो सबसे फेवरेट हुआ है PQRS। हर एग्जाम में बहुत लेंदी लेंदी आ रहा है, तो उसको कैसे टैकल किया था एग्जाम में? हम PQRS में तो सबसे पहले ऑप्शन देखना रहता है, कहते हैं ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे, कहते हैं एक दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं कि स्टार्टिंग किस से हो रही है, कहते हैं कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसका प्रोनाउन क्या कहते हैं, प्रोनाउन से कहते हैं कैंसिल कर दो। ऐसे बहुत सारी क्या कहते हैं होती है, उनसे मतलब पहले नलीफाई करोगे, कहते हैं डायरेक्ट क्या कहते हैं पहले 4 ऑप्शन को पढ़ोगे, वहीं आपका क्या कहते हैं 2 मिनट वेस्ट हो गया। इससे बढ़िया पहले ऑप्शन को क्या कहते हैं, आपको पता है बस अब P या R से स्टार्ट होगा, तो बस उन दोनों को ही पढ़ना है आपको। इज राइट। देखो, आपके पास क्वेश्चंस आए ना, अब बैठ के पूरी कहानी समझ तो नहीं सकते, इतना तो टाइम नहीं है। तो सीधा ही इज राइट कि दो ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट हो जाता है, बाकी का बचा दो। तो उसमें भी थोड़ा सा आप, ये भी चीज है ना, इसका कोई रूल वगैरह तो है नहीं। ये भी जितना हो सके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हर सेंटेंस का टाइप अलग होता है। इट्स नॉट कि कोई फिक्स रूल है जिसको लगा के आप फिक्स कर लो, मतलब चीजों को कर लो। और पेरेंट्स वगैरह का क्या रिएक्शन है? हम बहुत प्राउड थे, बहुत हैप्पी थे, क्या कहते हैं, और ये और यही बोल रहे थे क्या कहते हैं कि यही परफॉर्मेंस क्या कहते हैं अब, जैसे CGL में भी क्या कहते हैं यही वो करना कहते हैं ऐसे ही। CGL में भी अच्छा परफॉर्म करना हो। और नो डाउट मैं नेक्स्ट ईयर तो आप लोगों का वेट करूंगी मीटअप के लिए। तैयार हो ना सब मीटअप में आने के लिए? और हाँ, यस ये वादा करना है मैम, अभी तो CHSL निकाला, आपके मीटअप में हम CGL निकाल के भी आएंगे। ओके, नाउ कमिंग टू, बहुत अच्छा लगा। कमिंग टू अरुण। यस तो मैम। अरुण बताइए, हाउस लाइफ कैसा चल रहा है? अभी तो पढ़ाई भी चल रही होगी, सब बच्चे CGL की मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी मैम। बताइए कुछ प्रिपरेशन जर्नी, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। प्रिपरेशन मैम, मैं तो सिर्फ आपकी तारीफ करने के लिए आया था ऑनलाइन। अरे तारीफ नहीं करना, स्टूडेंट को गाइड करना है। आप स्टूडेंट्स को सही गाइड कर दोगे और बच्चा सिलेक्शन ले लेगा, तो मेरी तारीफ तो ऐसे ही हो जाएगी। आप नहीं मैम, आप बहुत मेहनत करते हो यूट्यूब पे ना, और आपका जो टेलीग्राम पे क्विज आता है ना, हर दिन का जो आप क्विज अपलोड करते हो, मतलब काफी हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा। ओके। क्योंकि 10 क्वेश्चन तो वहीं हो जाते हैं डेली के। डेली के डेली, हाँ। हाँ जी। और कैसे कैसे आपने तैयारी की थी? इंग्लिश, आपकी इंग्लिश थी कैसी पहले से? बेस वगैरह कैसी थी? इंग्लिश मैम, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा था, तो मतलब बिल्कुल बेस तो था नहीं। तो मैंने मैम थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई थी, मतलब मैं इंग्लिश मूवीज बहुत देखता हूँ। ओके। तो अभी, हाँ जी, और आपकी वीडियोस यूट्यूब पे। तो अभी मेरा स्कोर शायद 113 था इस टाइम, 120 में से ना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने तो यही अप्रोच अपनाई थी मैम। अब मत बोल देना पता मूवी, चला कि कोर्स छोड़ के दिन रात सब बैठ के इंग्लिश मूवी देख रहे हैं। नहीं 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 मैम, ऐसा नहीं। और हाँ, बाकी मैक्सिमम मॉक लगाए थे। मॉक्स बहुत लगाए थे। मॉक्स में आपको पता चल जाता है ना, कहाँ कहाँ आप मार्क्स लूज कर रहे हो, कहाँ आपको वर्क करने की जरूरत है। वो कैब के लिए हाँ क्या जी। करते थे? वो कैब के लिए मैम, वो कैब के लिए ब्लैक बुक पढ़ी थी मैंने जस्ट। ओके, उसमें और पूरा प्रीवियस पेपर प्रीवियस ईयर वगैरह है। क्वेश्चन सारे, हाँ जी। प्रीवियस ईयर के अलावा मैंने कुछ नए नहीं पढ़े। नहीं, यू आर राइट, हम अपना सोर्स ही बनाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। हाँ जी। और पैसेज वगैरह को कैसे डील किया? पैसेज मैम नॉर्मली, मतलब इंग्लिश अब काफी अच्छी हो चुकी है एक्चुअली, आपकी वीडियोस देख देख के। आई मीन काफी बेटर है अभी, मतलब और पूरी CGL पढ़ का ले। प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? मेंस तो अब आएगा, मेंस। सीजीएल का मैम मैंने स्टार्ट कर दिया है। मेरा 20 तारीख को पेपर था, मैंने 21 से ही स्टार्ट कर दिया था। लास्ट टाइम मैं कंप्यूटर में फेल हो गया था, तो मुझे अच्छी पॉइंट मिली। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ था, तो इस बार कंप्यूटर को सीरियसली लेना है और स्किल टेस्ट वगैरह पे भी मेहनत करना है। हाँ जी मैम।
मुझे अब सारे बच्चे ना, मुझे, मैंने सबका फेस स्कैन कर लिया है, पहचान लिया है। अब मुझे अपने कम्युनिटी बॉक्स में सारे का सीजीएल, सारे बच्चे हमारे सीजीएल दे रहे हैं, तो सीजीएल वाला पोस्ट मेरे को चाहिए। तो वादा कर लेना है कि मैम आप टेंशन मत लीजिए ना, रिजल्ट आएगा तुरंत आपको भेजेंगे। चलो अब आते हैं सचिन पे। मैम वेरी गुड इवनिंग मैम। यस यस, गुड इवनिंग सचिन। चलिए सचिन बताइए, आप अपनी जर्नी बताइए। मैम जर्नी तो ऐसे है कि मेरी 2021 में मेरी बीटेक कंप्लीट हो गई थी जयपुर से, एनआईटी जयपुर से। तो मेरे को प्लेसमेंट तो मिल गया था, लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था मेरा फायदा मैम। होगा। लेकिन हाँ, तो फिर मैं फिर चल ही रहा था, लेकिन मैम पूरे दिन वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम, मैम पूरे दिन वो कोडिंग 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 करते रहता था पूरे टाइम। मैम ऐसी हालत हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग गया था, मतलब बाहर की वर्ल्ड से कनेक्ट डिस्कनेक्ट होने लग गया था। तो फिर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ मैंने जॉब छोड़ी। मेरे भैया ने एसएससी की तैयारी कर रखी थी, तो उन्होंने बोला कि इस फील्ड में चला जाए, इसमें मैथ, उस टाइम मैथ और इंग्लिश मैम आती थी सिर्फ मेंस में। मीन्स तो मैं सोचा तो इसको सोचा कि एक साल में करके आगे अपनी तैयारी करेंगे, आगे यूपीएससी वगैरह की। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपना कोर्स कंप्लीट करने लगा, कंप्लीट हुआ, उस टाइम पूरा पैटर्न चेंज हो गया मैम। अब मैम उस टाइम इतना दुख हुआ था मैम, मैं रोने लग गया था पूरा कि मेरे को जीके मैम बिल्कुल नहीं आती थी। मैं साइंस बैकग्राउंड से था, मेरे को मतलब ये नहीं पता था मैम कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मतलब इन सब में क्या डिफरेंस वगैरह होता है, कौन क्या होता है, मेरे को इतना भी नहीं पता था मैम, जीरो था। और उस टाइम एक प्री भी दिया था मैंने, उस टाइम कोचिंग करते टाइम, यही ऑफलाइन ज्वाइन कर रखी मैम। तो उसमें 0.5 नंबर आए थे मेरे जीके में। तो मैं बोला यार ये तो चलो देखी जाएगी, लेकिन जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ मैम, तो फिर समझ में आया कि जीके तो पढ़नी पड़ेगी। पढ़नी पड़ेगी तो हाँ। तो उस टाइम मैंने अन अकेडमी लिया था ताकि वहां से जीके पढ़ लूँ। फिर वहां जीके पढ़ी, फिर मैम धीरे धीरे किया। ग्रामर तो मैम ज्यादा टाइम लगता नहीं है करने में, बस ज्यादा प्रॉब्लम मुझे आई थी प्रिपोजिशन चैप्टर में, और ये फिक्स प्रिपोजिशन, तो ये फिक्स सब के लिए तो ये सब मैं खोज रहा था कहाँ से पढ़ना है। फिर मैम मैं यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे थे, वहां पे सबसे पहले मैं फिक्स प्रिपोजिशन वाली वीडियो देखे थे, 500 कुछ थे मैम आपके। फिर उससे उससे मैम आपके वीडियो से मेरा लिंक बनता गया, आपसे ट्यूनिंग होती गई। फिर मैंने उसके बाद पैसेज कैसे डील करते हैं वो देखा, क्लोज टेस्ट वगैरह कैसे डील करते हैं वो देखा। क्योंकि मैम ग्रामर में ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, जैसे आप रूल याद करते जाओगे, अप्लाई करते जाओगे, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। बाद में पीक्यूआरएस वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इनमें दिक्कत आ रही थी। तो जैसे क्लोज टेस्ट में आर्टिकल का यूज, प्रीपोजिशन का यूज, वर्ब के यूज से अपन कैसे अपन ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ये सब धीरे धीरे मैम समझ में आने लगा। फिर उसके बाद मॉक्स लगाए, मॉक्स में धीरे धीरे समझ में आने लगा। मतलब रूल पता होते हुए आप गलती कर देते हो मॉक्स में, ये ये प्रैक्टिस से ठीक होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैम सही होता है। अब भी मेरे इंग्लिश में मैम 3-4 क्वेश्चन जब भी गलत हो ही जाते हैं। पहले तो अभी भी इंग्लिश समझ। इंग्लिश को मैं साइड रखती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस बार जीएस में कितना मार्क्स लेके आए हो। मैम मेरे जीएस में 20 में से 15 क्वेश्चन सही थे इस बार। सोचो कितना मैम इम्प्रूवमेंट किया है, 0.5 आया था लास्ट ईयर। मैंने 6-7 महीने सिर्फ जिक के पढ़ी थी, 6-7 महीने ना अकेडमी से पूरी, सिर्फ जिक के। लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन होगा ना, 20 में से 15 बहुत ज्यादा मैम। सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। और मेरे पेरेंट्स ने सबसे पहले ये पूछते थे कि जिक्के में कितने नंबर आ रहे थे, उन्हें पता थे इसके पूरे सिस्टम जिक्के में खराब होगा। जैसे मैंने जिक्के में बताया ना, मैं 20 में 15 बहुत ज्यादा खुश हुए थे। और बहुत। नहीं पूछते थे, हमेशा जिक्के क्या पूछते किया थे। था सचिन जीके के लिए, मतलब पढ़ तो रहे थे, मतलब कैसे कैसे बहुत ज्यादा सोर्स फॉलो किया था। वो नहीं नहीं मैम, मैंने हर एक, जैसे हिस्ट्री के लिए एक टीचर पकड़ा, उससे पूरी हिस्ट्री पढ़ी मैंने। पॉलिटी के लिए एक टीचर पढ़ा, पूरी उससे पढ़ी। क्योंकि मुझे इतना भी नहीं है कि एक टीचर सब जीके में इतना कोई एक्सपर्ट नहीं होता। मैं जैसे अब मैं डायरेक्ट नाम लेके बोलूँ तो वरुण अवस्थी सर से मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटी वगैरह। उसके बाद जैसे मैम स्टैटिक वगैरह पार्ट होगी, ये सब जैसे डांस वगैरह, ये तो मैं यूट्यूब से देख लेता था। कई टीचर बना के जैसे ट्रिक वगैरह डाल के निम्नमोनिक से बता देते हैं, तो वहां से थोड़ा याद होने में धीरे धीरे। और मैम फिर इतनी जल्दी भूल जाता था, हर दूसरे दिन भूल जाता हूँ। फिर उसके बाद वापस रिवाइज करो, वापस रिवाइज करो, ऐसे मैम हर हफ्ते हर एक 3 टॉपिक पकड़ता, डांस, म्यूजिक एक जैसे। बात मुझे बताना कि स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि मैम मैं भूल जाता हूँ, 3-4 साल पहले कोई मूवी देखा होगा ना, देखा होगा ना सचिन, याद है वो? याद है ना मैम, पूरी वीडियो क्यों वीडियो आ जाती होता। वो क्यों नहीं भूलते हो और क्यों जीएस भूल जाते हो, बस मुझे आज जानना है, रीजन बताओ। मैम एक तो क्या, उसकी पूरी वीडियो जो अपने दिमाग में बैठ जाती है, उसकी पूरी स्टोरी टाइप ऐसे बैठ जाती है। ऐसे तो अपन ऐसे डांस वगैरह जैसे याद किए हैं, तो उसकी भी ऐसे बनाना पड़ता है कि भाई
जैसे कि आसाम से आसमान रिलेट किया, आसमान से उसके साथ जो उसके डांस है वो जोड़े, ऐसे थोड़ा जोड़ जोड़ के मैम तैयार होना पड़ता है। ऐसे, और फिर बाद में जब 3-4 बार आप निमोनिक के साथ याद कर लेते हो ना, फिर डायरेक्ट याद होने लग जाता है। ना तो ये भी तो आप बोल सकते हो ना, अरे मैम आप कहाँ मूवी को कंपेयर कर दिया आपने जीएस से, मूवी इंटरेस्टिंग होती है, वो तो याद नहीं नहीं, रहेगा। मूवी तो इंटरेस्टिंग होती है मैम। हाँ, अब इंग्लिश को मैं बोलूं कि आप कहाँ वोकैब को कंपेयर कर रहे हो मूवी से, हाँ, वोकैब भूलने वाला चीज है, भूलने वाली चीज है, बार बार करते रहो हो जाएगा। और आशुतोष आपका जीएस में क्या मार्क्स था? मैम 45 था। माय गॉड, बहुत अच्छी बात है। और कैसे कैसे किया था? आज आज यही सोच रहे हैं कि मैम इंटरव्यू तो ले रही है, इंग्लिश की टीचर है, और बात आज जीएस की कर रही है, क्योंकि मैंने देखा है जीएस को लेके बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब ये वीडियो जाए ना तो कुछ हेल्प हो जाए बाकी बच्चों को। कैसे कैसे सोर्स वगैरह फॉलो किया था, कैसे पढ़ा था? बहुत अच्छे मार्क्स है आपके। मैम पहले तो क्या कहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 मेजर सब्जेक्ट थे, तो ये तीनों का फुल कोर्स किया था। और फिर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, वो तो फिर मतलब पीवाईक्यूज वगैरह से कर लिया था, क्योंकि उसका एक आध क्वेश्चन आता था, कभी वो होता था तो होता था, या वरना नहीं होता था वो। और फिर ये स्टैटिक वाला पार्ट बहुत मतलब ये रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, और ये स्पेशली ये डांस कल्चर वगैरह से रिलेटेड। तो इनके लिए ये तो भाई निमोनिक्स बना बना के और इनको याद करना था। और स्टडी का ये सबसे बढ़िया बात रहती है कि उसको एक बार याद कर लिया वो आपने, तो फिर वो हर एग्जाम में ये तो काम आता रहेगा। अभी करंट अफेयर्स का ये रहता है कि आपने एक एग्जाम में पढ़ा, फिर अगले एग्जाम के लिए वेस्ट है वो एक तरीके से। सही बोल, मतलब आपने यही सोचा होगा ना कि कम से कम चलो करंट तो बहुत अनरिलायबल है, मैं अपना स्टैटिक वाला पार्ट को मजबूत कर लेता हूँ, वहां से तो जो भी यस क्वेश्चन आएगा मैम। बन जाएगा। तो आपने ये जीएस के लिए क्या माइंडसेट लेके गए थे? कभी कभी मैं देख रही हूँ बच्चों को कि चलो पढ़ लिया है, जो होना है होगा। आपको क्या था कि मेरे को अच्छा नंबर लाना है, जीएस में किसी हाल में अच्छा मार्क्स लाना है, या चलो पढ़ के जा रहे हैं, जो होना है हो जाएगा? क्या माइंडसेट के साथ गए थे? अच्छा मार्क्स लाना है एकदम। हम अच्छा मार्क्स लाना था, मतलब जो पढ़ा था ये थे उसके लिए तो ये था ये थे कि हाँ इसमें से आ जाए तो बेहतर रहेगा ये थे। करंट अफेयर्स का ये था ये था कि लास्ट में पढ़ता हूँ मैं बिल्कुल ये थे, जब पेपर आ जाता है उसके 3-4 हफ्ते पहले ये थे पढ़ता हूँ, वरना उसके पहले बिल्कुल जीरो पढ़ता हूँ करंट अफेयर्स में। क्योंकि आजकल तो ये हो गया कि 2-2 3-3 साल पहले जब पूछ रहे हैं, तो पूछ रहे उसमें कोई चांस नहीं है ये थे कि आपके लक के ऊपर है कि आपका पढ़ा हुआ आ जाए या नहीं आए। हैं। जीएस इज वेरी अनरिलायबल, वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट जीएस। एंड जिस चीज श्रवण, में हम ज्यादा भी नहीं कर सकते। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर जीएस, श्रवण? Ma'am, actually, previously they used to give one-liners. At that time, I am very good at GS, ma'am. अच्छा, यू आर गुड एट। But now they are giving, but now they are giving, select the correct options on from the above. Like that means it will be a bit difficult while trying to answer that question. For that, you should have a Now, thorough knowledge of GS and all in order to eliminate the options yes, and all. So, what was your score in yeah, GS? 30 marks, ma'am. 30. Actually, I got good score in English and mathematics, You so I compensated. am here right now. What Yes, was ma'am. your score in English? Uh, that I don't can't remember right now. But you know that I had a good score in English, but exactly I don't know the Yes, mark. ma'am. Okay, Yes. okay. Now coming to दिव्यांग। चलिए दिव्यांग, बताइए आपका क्या था? रीजनिंग वगैरह से भी कुछ बात करते हैं, रीजनिंग वगैरह में कैसे क्या किया था? मैम रीजनिंग में ये है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस से क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो ज्यादा मेहनत की इतनी जरूरत नहीं होती है रीजनिंग में। तो मैंने क्या किया था कि मॉक एग्जाम्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पहले टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस कर लो। और कभी कभी मैम ये होता है जब हम न्यू एस्पिरेंट होते हैं, हम किसी टॉपिक में फंसते हैं, तो आप उसको यूट्यूब में जाकर उसका टॉपिक देख लो, कोई ट्रिक है तो उसको नोट कर लो एक नोटबुक में, और फिर आप नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर जाओ। तो मैम रीजनिंग में मैंने बहुत कम टाइम देके मतलब मैक्सिमम उससे आउटपुट जो निकाल सकता था इसी वे से निकाला है, मॉक एग्जाम से सीख के पास्ट ईयर। और जो टॉपिक नहीं आता आप उसको यूट्यूब में 2-3 बार आज देख की लो अच्छे डेट से। में यूट्यूब आप लोगों को, मतलब अगर आप सही सोर्स चुन रहे हो तो काफी आपके लिए हेल्पफुल है। जितना ज्यादा आपको कंफ्यूज करता है, लेकिन आप फोकस्ड हो, आप सही जगह पे जाके बहुत सारा कंटेंट ले सकते हो। यस। और अनुराग नहीं, सॉरी, अरुण, अब ये मत बोलना कि मैंने जीएस के लिए इंग्लिश मूवी देखा था।
जीएस नहीं कैसे मैम, तैयारी जीएस की? तो मेरे सबसे कम नंबर है, मेरे सिर्फ 25 ही नंबर थे जीएस में। 25 नंबर भी बहुत है। बच्चे बोलते हैं एग्जाम में जाने से पहले मैम 25 भी आ जाए ना। खैर बहुत अच्छे अच्छे जैसे वो बता रहे हैं उनका 45 स्कोर है, जीएस में 45 लाना बहुत बड़ी बात है। तो कैसे कैसे पढ़ाते हैं जीएस अरुण? जीएस में मैंने यूट्यूब पे वीडियोस ही देखी थी। यूट्यूब पे वो भी? जो आती है ना, जैसे मंथली करंट होगी, और लूसेंट, एक मैंने सिर्फ लूसेंट और मंथली यूट्यूब, बस और कुछ नहीं देखा मैंने। लूसेंट के बारे में बच्चे बताते हैं कि बहुत वास्ट है। नहीं मैम, लूसेंट तो आराम से पढ़ी जा सकती है। आराम से पढ़ी जा सकती है। हाँ जी, क्योंकि पर सब्जेक्ट वाइज है, उसमें शायद 80 या 90 पेज की हिस्ट्री है, और ऐसे ही 70 से 80 की पॉलिटी है, ऐसे सेक्शन वाइज है। इंग्लिश के लिए जो बच्चे इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे बच्चों का कहना होता है मैम मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ। अब ये हिंदी हम्म। मीडियम इंग्लिश मीडियम तो कुछ रहा नहीं है। सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भर भर के मुझे सिलेक्शंस दे रहे हैं। क्या बोलना चाहो हम्म। हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को? मैम देखो, बचपन का तो फर्क पड़ता ही है थोड़ा बहुत ना, लेकिन मेरे हिसाब से एक साल अगर हम ढंग से इंग्लिश पढ़ लें तो कवर हो सकता है पूरा। यस यू आर वेरी राइट। अगर आपने मन बना लिया है ना कि मेरे को इम्प्रूव हम्म। करना है, तो नथिंग कैन हम्म। स्टॉप यू। कोई हाँ ये जी। ना ये एग्जाम कोई इतना भी रॉकेट साइंस का एग्जाम नहीं। नहीं नहीं, इतना कुछ कुछ नहीं नहीं, है ये मैम। एक जनरल कंपटीशन है, जनरल माइंडसेट वाले बच्चों का है। बस ये है हाँ। यहाँ पे कि थोड़ा सा भीड़ ज्यादा है तो आपका कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है। भीड़ अदरवाइज बहुत आपका ज्यादा कभी भी ऐसा नहीं है। आप पिछले है। 5 साल का भी पेपर उठाओगे ना, थोड़ा वगैरह मार्क्स का वेटेज इधर उधर हुआ है, लेकिन आप 5 साल का भी पेपर उठाओगे पैटर्न में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। सिलेबस आपका हम्म। वही है, पूछने का वही तरीका से थोड़ा इधर उधर किए हैं। तो ये एक जनरल कंपटीशन है, बच्चे आराम से निकाल लेते हैं। आराम से लेकिन निकलते हैं। बच्चे को कहीं कहीं पे डरा भी दिया जाता है। ओके, इसीलिए बच्चे थोड़ा सा भटक जाते हैं, गलत गलत सोर्सेस पे चले जाते हैं, जिस वजह से ना हाँ जितना जी। जल्दी वो निकाल सकते हैं एग्जाम को, उनका 3-4 साल लग जाता है। पर ठीक है, हम्म। अल्टीमेटली 2 साल लगे 3 साल लगे, हम्म। एग्जाम निकल जाना चाहिए। हाँ जी मैम। ओके, कुछ बोलना चाहोगे अनुराग बिफोर वी एंड? कुछ बोल, अनुराग बार बार बोल दे रही हो। अरुण? कुछ नहीं मैम, आप ऐसे ही पढ़ाते रहो, थैंक यू सो मच। ओके चलो, अच्छा लगा। नाउ कमिंग टू आशुतोष, कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपने बहुत अच्छे से बहुत ऑनेस्टली चीजों को शेयर किया। कुछ बोलना चाहोगे आशुतोश? थैंक यू सो मच, जो आप कर रहे हो मैम अनमैचेबल है मैम। जो लगातार ये थे प्रैक्टिस सेशंस लाना गए थे, यूट्यूब पे हो या अनअकैडमी पे हो, फ्री क्लासेस भी बहुत सारी हो गई है आज आजकल, जिन पे मतलब सही टीचर हो तो स्टूडेंट को बहुत कम अपनी तरफ से ये कहते टेंशन लेने की जरूरत रहती है। काफी हद तक आप क्या कहते हैं पीआईक्यूज वगैरह भी अपडेट करके गए थे, प्रैक्टिस सेशन में ला देते हो, तो बहुत हेल्पफुल रहता है वो। नो डाउट, आपने बोला आप जो कर रहे हो अनमैचेबल है, और आप लोग जो मुझे दे रहे हो ना सिलेक्शंस, वो भी remarkable है। ऐसा सिलेक्शन देखो तो टीचर का एनर्जी लेवल, टीचर ऐसे ही बूस्ट रहेंगे। मुझे मुझे टेलीग्राम पे मेरी टीम ने बताया कि मैम सेकंड रैंकर हमारे स्टूडेंट है। ठीक है, वैसे तो सब मेरे स्टूडेंट हो, आप मैथ्स वाले टीचर के भी स्टूडेंट हो। क्योंकि किसी भी सिलेक्शन में किसी एक सब्जेक्ट का रोल तो होता नहीं है ना, कलेक्टिवली सारे टीचर्स का उतना ही योगदान है। ठीक है, लेकिन हम टीचर्स बहुत प्राउड फील करते हैं भाई सेकंड रैंक मेरा है। सिर्फ मेरी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, बाकी के 3 सब्जेक्ट्स भी है। आपका भी कंप्यूटर है, स्किल टेस्ट है। तो चलिए, ऐसे ही मैं तो यही विश करूंगी ना कि जल्दी से जल्दी मुझे आप लोग का सीजीएल में सिलेक्शन मिले। और सचिन, कुछ बोलना चाहेंगे? बस कुछ नहीं मैम, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। तो आप एक जितना एक फ्री जो कंटेंट अंदर से यूट्यूब पे है ना देते हो ना कि मैम। एक जॉब मिल गई है, तो अंदर से कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन है। अब ना आपको वो टेंशन नहीं हो रहा होगा सीजीएल की तैयारी के दौरान। थोड़ा बहुत टेंशन तो रिलीज हो गया कि चलो मेरे पास एक जॉब तो हाथ में है। उसके बाद थोड़ा सा माइंडसेट अच्छे से आप और भी स्ट्रांग होके तैयारी करिए। हाँ बोलिए सचिन, कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं तो मैं तो यही कह रहा था, आपने जितना फ्री कंटेंट यूट्यूब पे डाल रखा है ना, बहुत सही डाल रखा है। मतलब कि एक्स्ट्रा कोई बात ही नहीं है, बस सिर्फ काम से काम। आज बच्चा पढ़ने आ रहा है, सिर्फ पढ़ के चले जा रहा है, फालतू की बात ही नहीं है। हर जगह क्या मैम, कुछ पढ़ा रहे हैं, अपना कोर्स बेच रहे हैं, आधे घंटे की वीडियो में 20 मिनट कोर्स बेचते रहते हैं। इसलिए हाँ एक सही बच्चे टीचर को मिल जाता है ना, पढ़ बहुत सही देखो होता है वो। सचिन, पढ़ाया तो मैंने सभी को है। हाँ, हम लोगों के मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो आज मिलियन सिलेक्शन मिलता, लेकिन आप लोग ऐसा, एक टीचर को भी तो एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए ना, जो वो टीचर की बातों को समझे। कम से कम टीचर की बातों को वो 50% भी एग्जीक्यूट कर दे ना, तो उसका काम हो जाएगा। तो हम लोगों को भी वैसे स्टूडेंट चाहिए ना, जो हमें हमें समझे, हमारी बात को माने। नहीं तो बच्चा इधर उधर भटका हुआ है,
फिर बाद में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और आप लोग का जो अभी एज है ना, ये सिलेक्शन वाला एज है, एक बार सेट हो जाते हो तो पूरी लाइफ आगे सेट है। ये तो बहुत, हमें भी बहुत खराब लगता है जब बच्चा परेशान होके बोलता है ना कि मैम मैं इतने दिन से तैयारी कर रहा हूँ, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैम आप कुछ बोलिए। तो वो सब अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि थोड़े पहले से ही इसने अच्छे से तैयारी की होती तो इतना ये स्ट्रगल नहीं करता। और नाउ कमिंग टू दिव्यांग, रैप अप करेंगे, एक बार मैं सबसे बात कर लूं। दिव्यांग, कुछ बोलना चाहोगे? यस मैम। मैम जैसे मुझे ग्रामर में बहुत डर था, तो वो तो डर मेरा दूर हुआ। और अब फिर जैसे मैं ग्रामर के रूल सीख के प्रैक्टिस करता था आपके यूट्यूब सेशन से, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। एंड मैम फिर जैसे मेरी सिस्टर है, वो बैंक की तैयारी कर रही है, तो मैंने भी आपका उसको सजेस्ट किया है, तो वो भी इंग्लिश आपसे ही कर रही है। मतलब जो भी उसके बेसिक्स है, मैंने कहा जो भी सिलेबस ओवरलैपिंग जैसा भी हो रहा है, आप मैम का देखो। तो उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो भी आज कह रही थी कि मैम से बस कहना मेरे लिए भी कि मतलब और थैंक्स। हाँ, मैं भी बोला, मैम ने विश किया है कि जल्दी से बैंक का एग्जाम निकाल के, और मैम ने आपको बुलाया है। बहुत सारे बैंकिंग श्योर मैम, श्योर। ने निकाला है। तो चलो, एंड यस मैम। श्रवण, व्हाट विल यू लाइक टू से बिफोर वी रैप अप? Ma'am, actually, I took offline coaching, ma'am. ऑफलाइन? There I got all the basics for all the subjects, but they also provide a newspaper so that I know while answering the questions, I know the answer exactly, but don't know why I answer it correctly. When I read grammar from your sessions, I know why it is came like that. That's a bit helpful. While doing other problems also, I can easily answer that question Now, if we know the now grammar you have correctly. got to know the logic behind your answers and all. Yeah, Oh. previously I don't know the logic, but I used to keep the answers Since right you were away. accustomed to reading newspapers and all, na, so you had the Yeah, flow. You were able to come to the correct answer, but you didn't know how did I come yeah, to the correct answer, the logic behind. So this helps, no doubt. This yeah, helps in close test and all. But when it comes to yes, error and all, na, so you have to be very precise. yeah, For errors and all, no doubt, at any cost. This English movies, this newspaper will not help you to a great extent because we have very minute errors. Okay, even if a student yes, is very adept in English, many a times they are not able to find the precise error. The sentence sounds correct. आपको लगेगा ना, अरे क्या है ये, तो पूरा पढ़ के सही लग रहा है, कुछ तो एरर लग नहीं रहा है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ग्रामर। तो एट एनी कॉस्ट ग्रामर तो करना yes, ही पड़ता है। लेकिन many a times it also happens कि in spite of studying grammar for 1 or 2 years, if you don't do practice and all ना, तो you will not be able to spot the errors. तो ग्रामर needs practice। एंड अभी तो ग्रामर का लेवल भी बहुत इजी आ गया है। ग्रामर टफ नहीं पूछ रहे हैं। अंटिल 2017 तक ग्रामर का लेवल बहुत अच्छा आता है। अभी तो 2 के साथ V1, हैड के साथ V3। तो इंस्टेड ऑफ yes, जंपिंग इनटू द समंदर ऑफ ग्रामर, वर्क करो, क्योंकि आज के डेट में क्लोज टेस्ट, PQRS और ये जो पैसेज वगैरह है ना, ये सब डिसाइसिव हो गया है। ये सब पे बहुत वर्क करना है। और अब टीचर्स भी ग्रामर छोड़ के इस पे आ रहे हैं, ताकि बच्चों को भी लगे कि नहीं नहीं भाई, हम टीचर्स ना ग्रामर पढ़ाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि कहीं कहीं बच्चों को उसी में इंटरेस्ट आ जाता है। बट हमें भी तो काम है ना कि हमें स्टूडेंट्स को खुश थोड़ी करना है, उनको सिलेक्शन दिलवाना है। ऐसा थोड़ी है कि जो मैंने उनको जो अच्छा लग रहा है मैं वही पढ़ाऊं। अल्टीमेटली सिलेक्शन चाहिए। तो चलो, बहुत अच्छा लगा आपके चेहरे पे स्माइल देख के। ऐसे तो मैं आपको कमेंट्स के थ्रू जानती थी, आज मुझे सामने सचिन, दिव्यांग, श्रवण, अरुण, आशुतोष सब दिख रहे हैं, और एक चेहरे पे आपकी मुझे कॉन्फिडेंस दिख रही है। और मुझे मैं चाहूंगी कि यह कॉन्फिडेंस आगे भी बना रहे। और नो डाउट लाइफ में आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अभी तो CHSL निकाला है, और मेरा बेस्ट विशेष है आपके लिए CGL के लिए। और मेरे को CGL में मतलब जैसे जैसा रैंक यहाँ पे लाया है ना, वैसे ही वाला रैंक वहां पे चाहिए। तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? yes, ma'am. डेफिनेटली मैम। ठीक है, तो यस ऐसे मैम। किया जाए सेशन को। ठीक है, और यस मैम। आप लोगों के साथ साथ मम्मी पापा को भी बोल देना, मैम ने भर भर के आप लोगों को भी कॉन्ग्रेट्स बोला है। ठीक है, थैंक यू मैम। लेट्स थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच।